I hope everyone is, as usual, able to hear me and see me clearly. Just indicate so in the chat box, and then we begin immediately without wasting moment of time. All right. Okay. Thank you. Thank you everyone for the feedback. Let's now begin. And today we will be finishing monetary policy and a brief introduction of how monetary policy has been used to tackle the recent pandemic of COVID. One. Number two, we will also have a brief introduction of RBI website. We will acquaint ourselves with the contents of RBI website and how RBI looks at these instruments of monetary policy. Number three, we will on the website itself, we will try to learn what is flexible inflation targeting framework. Sometimes questions can be framed on this actually. Okay, questions can be framed on this in mains also. I will keep fingers. How is our capital and money market? How is it structured in India? So these are the aspects which we intend to cover today. And very quickly, without wasting any time, till now you already know that the different measures, they can be classified into quantitative and qualitative tools of monetary policy, and certain recent developments in the name of certain recent does not mean a year or 2 years. Recent in terms of the entire history, economic history of the country, that means in the past few decades. में देखे क्या हुआ है, recent 2000 से हमने देखा कि liquidity adjustment facility, market stabilization scheme and marginal standing facility. These are the three major say policy innovations that have taken place, which ultimately aim at stabilizing the economy from the effects of outside factors as well as inside factors, exogenous as well as endogenous factors से ये लड़ने का के वेपन्स हैं एक्चुअली, अगर आप देखिए ध्यान से तो, है कि नहीं? कुशाग्र अपना माइक बंद कर लेना दोस्त, गलती से शायद खुला रह गया है. हाँ, थैंक यू. ऑल राइट, सो आज कुछ और डेवलपमेंट्स आपको बता दें हम, जो आपको जानना चाहिए. ये फैक्ट्स की तरह इनको समझ लीजिए, बस आइसोलेटेड फैक्ट्स हैं, लेकिन आपको जानना चाहिए कि आप अगर याद होगा तो ठीक है, कल ही बता दिए थे, कल या परसों जब भी क्लास हुई थी, परसों लास्ट क्लास में हम लोग बात किए थे that since 2016 an important change has happened, and that change is that a monetary policy committee has been put in place. ठीक है, एक मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी जो है, मुद्रा नीति समिति जो बन गई है, और उसका काम है कि वो फ्रीक्वेंटली मीटिंग करे और साल में कितने बार अनाउंस करे मॉनिटरी पॉलिसी को, रिकमेंडेशंस अपनी दे. साल में कितनी बार अब होता है भाई? 6 times, absolutely. So bi-monthly it is, isn't it? जो पहले yes half yearly हुआ करता था, वो चीज bi-monthly होती है. यही एक समझने वाले में था. मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी का ऑर्गेनाइजेशन क्या है, कौन से लोग उसमें मेंबर होते हैं, that is your homework. I would expect you to just have a look. There is no need to mug it up. You should know who is the chairperson, who is the de facto chairperson of that thing, and how many members are there. General knowledge की चीज है, इसलिए मालूम होनी चाहिए. Important development है, you must know. All right. तो उसी से रिलेटेड पहला आइटम है कि since 2016 when monetary policy committee has come in existence, the monetary policy is announced as bi-monthly basis, on a bi-monthly basis instead of half yearly basis. An important thing. How does it have a significance for you? Just a minute. Someone. Mukul, please take care. Okay, so we were there. That what is the significance that we should attach to this particular development? The main underlying development behind MPC and bi-monthly announcement is this, my dear friends, that instead of waiting for 6 months to intervene in something, you should be more current and more fluid in terms of understanding the pulse of the market, the pulse of the liquidity position, the contraction and expansion of liquidity, that you should have a more frequent and more agile and more alive connection with the position in the market. Okay, that was one development worth mentioning here. The second development that is worth mentioning is
conventionally CRR is kept in the range of 3 to 15%, but in 2007 the floor was removed. Floor means the 3% limit, 3 से 15 इनकी लिमिट रहती है कि 3% से 15% के बीच में आरबीआई फिक्स कर सकता है, लेकिन 3% से भी नीचे अगर जरूरत पड़े तो वो भी कर देना चाहिए लिक्विडिटी को फ्री करने के लिए। ऑब्वियसली यू वुड बी अंडरस्टैंडिंग। आप जानते नहीं है क्या ये कौन सा फेज था? 2007 के आसपास का फेज कौन सा था दोस्तों? आपको ध्यान होगा 2008, 7, 6, 7, 8, 9 इन सब में क्या क्राइसिस चल रही थी? कोई लिखे चैट बॉक्स में। ओवरऑल पोजीशन बहुत टाइट थे ना। एक्चुअली 10 साल पूरा हुआ, 10 साल उस एक्सपेरिमेंट को पूरा 1991 में हमने अपने आप को ओपन अप किया। धीरे धीरे एक्यूमुलेट होते होते बहुत सारी जो है चीजें, फिर जो ग्लोबल इन्फ्लुएंस है वो रिसेशन का था। तो ग्लोबल रिसेशन जो 2008 में हुई थी, जो वो उस समय बिल्डअप हो ही रही थी। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि लिक्विडिटी का जो है वो एक लिक्विडिटी का क्रंच महसूस हुआ होगा एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल फैक्टर्स की वजह से। एंड दैट इज व्हेन दिस पॉलिसी डिसीजन वाज टेकन कि भैया इनको जो है सीआरआर को कम 3 से नीचे ही नहीं ले जा सकता है। स्टैट्यूटरी लिमिट है ना भाई, आप समझ रहे हैं बात कि नहीं? इस कानून में लिखा हुआ है, तो इसलिए उसको अमेंडमेंट किया गया और कहा गया कि 3 वाला लिमिट हटा देते हैं। 0 से लेकर 15% हो गया। जरूरत पड़ने पर 3% से नीचे भी इसे फिक्स किया जा सकता है। अगर ये रिक्वायरमेंट है, इकोनॉमी की आवश्यकता है, तो ऐसा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, बिल्कुल बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं चैट बॉक्स में, मैं देख रहा हूँ बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमारे सामने हैं जो उस समय जो है एक इमरजेंसी इंटरवेंशन के लिए जो इंडिकेट करते थे, और वही हुआ भी कि सीआरआर की एक लिमिट जो है वो 3% फ्लोर को जो है रिमूव कर दिया है। तीसरा डेवलपमेंट जो आपको जानना चाहिए वो ये है, और बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसेंट डेवलपमेंट्स दैट हैज हैपेंड। That is an event of 2013, but it still has a far-reaching consequence actually. आपको ध्यान है कि ये जो रेपो हम लोग बोलते रहते हैं, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये तो आप जान गए हैं आप। तो रेपो रेट का मतलब ये हुआ कि बैंक जो है वो आरबीआई के पास से पैसा ले, उसकी रेट की वही रेट हो गया रेपो रेट। सिंपल सी बात है। लेकिन क्या आप नहीं जानते, क्या यह सबके मन में क्लियर नहीं है कि ये जो लेंडिंग है ये सिर्फ ओवरनाइट लेंडिंग वाली बात हो रही है? हमने जितना भी डिस्कशन किया था वो उसका 90% पार्ट जो है वो शॉर्ट टर्म यानी ओवरनाइट लिक्विडिटी की बात थी सिर्फ। ये लॉन्ग टर्म लोन्स की अभी बात ही नहीं किए हैं हम लोग, तो लॉन्ग टर्म फाइनेंस का तो ज्यादा बात ही नहीं किए हैं ना। ये तो 1 दिन 2 दिन 4 दिन वाला चीज है। स्पेशली ओवरनाइट का ही गेम है सारा। कॉल मनी मार्केट जो होता है जिस पर हम लोग बात किए हैं अभी तक, वो इसेंशियली ओवरनाइट लेंडिंग की बात हो रही है। ओवरनाइट आज दिया कल ले लिया टाइप से, है कि नहीं है? तो जब उसकी जो बात हो रही थी, अगर आप देखिए इस पॉलिसी मैटर को समझिए आप, कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो इकोनॉमी है उसमें लिक्विडिटी का जो एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन है, उसमें जो सडन वॉलेटिलिटी आती है, जो सडनली ये वॉलेटाइल हो जाता है, सडनली इसमें जो है वो शॉक्स आते हैं बाहर की वजह से, अंदर की वजह से, जिन भी कारणों से सडनली शॉक आता है लिक्विडिटी के लिए, कि लिक्विडिटी एकदम से सूख गई, लोगों को जो बैंक को भागना पड़ रहा है आरबीआई के पास। इस सब तरह की सिचुएशन क्यों आती है, यही तो प्रश्न है। अगर नीतिगत पक्ष से देखिए, नीतिगत परिप्रेक्ष्य से देखिए, तो हमारे लिए एक आदर्श परिस्थिति क्या होगी कि बैंक्स को जो है वो बैंक्स लेंडिंग, बैंक्स के डिपॉजिट लेंडिंग, ये सारे ऑपरेशन इतना स्टेबलाइज्ड हो। बहुत लंबी नहीं सोची जा सकती है, लेकिन कम से कम मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म पर ही ना आपका सारा फोकस रहे। मीडियम टर्म तो सोचिए कम से कम। तो आपकी पॉलिसी जो अगला 2 महीना, 4 महीना, महीना और 15 दिन का बाद का तो सोचिए कम से कम, कि उसको भी ध्यान में रखिए ना। उस हिसाब से आप प्लानिंग करिए। अगर ओवरनाइट में ही आप फंसे रहेंगे तो यू विल ऑलवेज बी एक्सपोज्ड टू एंडोजेनस और एक्सोजेनस शॉक्स ऑफ लिक्विडिटी। दैट विल ऑलवेज हैपन, एंड वी ऑलरेडी नो दैट आरबीआई चाहता तो है, ये भारत सरकार या कह लीजिए जो नीति बनाने वाले लोग हैं वो ये चाहते तो है कि भाई बैंक्स को समझाया जाए कि वो जो है सिर्फ शॉर्ट टर्म में ना उलझे रहे, लॉन्ग टर्म में भी थोड़ा सोचें, अपने ऑपरेशंस को स्टेबलाइज करें, स्टेबलाइज करें। लेकिन इसको कैसे इन्फोर्स किया जाए? एक तरीका आप जानते ही है कि कानून बना दीजिए, सीधा सीधा कानून बना दीजिए। लेकिन हम इस मतलब n नंबर ऑफ टाइम्स अपने डिस्कशन में पिछले 2 महीना 2 महीना 3 महीना से जब से भी हम पढ़ रहे हैं इकोनॉमी, तब से इसको कई बार हम समझ चुके हैं कि ये सबसे अच्छा तरीका नहीं होता है डंडा दिखा के काम कराने वाला। मैं जानना चाहता हूं कि क्या लिक्विडिटी फ्लो होता है रुपए का?
इसका मतलब तो पहले आप बताएं कि आपने इससे पहले की क्लासेस अटेंड किए हैं कि नहीं, लिखिए चैट बॉक्स में। तभी मिस हुआ होगा। तो फिर कैसे मिस होगा, ये काहे नहीं जान पा रहे हो कि लिक्विडिटी क्या होता है? लिक्विडिटी ही नहीं जान पा रहे हैं, अभी तक इतना बदकही हो गया तो लिक्विडिटी नहीं समझ में आ रहा। M1 M2 M3 सब बता डाले कि कितना पैसा हो सकता है, पैसे के कितने स्वरूप हो सकते हैं मार्केट में। करेंसी हो सकती है, बैंक के पास का डिपॉजिट हो सकता है, आदमी के हाथ में सेविंग हो सकती है, सब तो बता दिए। यही सब तो है लिक्विडिटी। खैर कोई बात नहीं, लीव इट। इफ यू हैव अ डाउट गूगल इट। सो वी आर हियर that RBI wants to do this, wants to enforce and achieve this particular target, that the banks should start thinking in the medium term and long term also. But how to achieve this particular objective? There can be a method of statutory intervention that the banks, RBI can actually enforce this by way of legislation or by way of say, you can say by instruction. But that is not one of the most efficient ways. We have already understood and convinced ourselves that the best way to get something done is by making somebody do, by inducing somebody to do it, not by forcing somebody to do it, isn't it? तो इंड्यूसमेंट की जो पॉलिसी है वो क्या कहती है कि मार्केट का ही सहारा ले लेते हैं और मार्केट के सहारे से ही उनको जो है समझाने की कोशिश करते हैं कि आप भाई लॉन्ग टर्म में सोचिए। तो देखिए क्या क्या आरबीआई ने, आरबीआई इंट्रोड्यूस्ड लॉन्ग टर्म रेपो, जिन्हें टर्म रेपो कहा जाता है। ओवरनाइट वाला रेपो तो आप सब जानते ही हैं, समझ ही गए। मैं जो नई चीज बता रहा हूँ वो सिर्फ टर्म रेपो है, उसको कहते हैं टर्म रेपो। टर्म का मतलब ही हो गया कि अवधि, यानी उनकी कुछ अवधि हो, वो 7 दिन 14 दिन 28 दिन के हो सकते हैं, ठीक है। और इसलिए उसके ऊपर गया आरबीआई, ये नए इंस्ट्रूमेंट्स उन्होंने इसलिए इंट्रोड्यूस किए कि इसमें भी पैसा अगर डालेंगे आप तो जो है आप थोड़ा दिन तक शांति रहेगा, जिसे कहते हैं थोड़ा दिन तक स्टेबिलिटी रहेगी, ट्रैंक्विलिटी रहेगी। ओके, तो इसलिए 7 14 28 सब दिनों के जो नए इंस्ट्रूमेंट्स आए हैं इन्हें टर्म रेपोज कहा जाता है, याद रखना। तो कोई कहीं क्वेश्चन दे दे प्रीलिम्स में कि जो है रेपो ऑप्शन कैन बी एक्सरसाइज्ड ओनली फॉर ओवरनाइट 2 days फलाना धमाका, तो आपको अब मालूम होना चाहिए कि रिपर्चेसिंग जो ऑप्शन है आरबीआई, उसमें ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स भी आ गए हैं जो 7 दिन 14 दिन या 28 दिन के भी हो सकते हैं। तो इनकी अवधि बढ़ गई है और पर्पस तो आप जान ही गए। तो एक बात तो ये आप समझ गए। दूसरा एक टर्म है, ये भी एक टर्म ही है लेकिन आपको समझाना जरूरी है। उसे कहते हैं लिक्विडिटी मैनेजमेंट फ्रेमवर्क। ये भी 6-7 साल पहले की चीज है, लेकिन आपको जानना बहुत जरूरी क्योंकि आज भी प्रचलन में है, ठीक है, इसलिए आपको जानना चाहिए। और ये बड़ी मजेदार चीज है, इसमें कुछ नया मैं नहीं बताऊंगा, ऑलरेडी आप जानते हैं सब, उसी को सिर्फ सीक्वेंस में अरेंज कर लेंगे हम लोग। क्या आप नहीं जानते कि बैंक्स के ऊपर एक सीलिंग है, बैंक के ऊपर एक लिमिट फिक्स की गई है कि आप अपना जितना भी आपके पास डिपॉजिट वाली लायबिलिटी है उसका 1% से ज्यादा आके आरबीआई से उधार नहीं मांग सकते। आपको बताया था, याद होगा आपको, 1% की एक लिमिट रख दी गई है। जरूरत पड़ने पर ऊपर नीचे होती रहती है लेकिन एक लिमिट होती है, ठीक है, तो आप पहले से ही जानते हैं। बस उसी चीज को इलेबोरेट करते हुए मैं आपको बता रहा हूं कि आरबीआई ने जो बैंक्स हैं उनके लिए एक प्रोटोकॉल सेट कर दिया। मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे आप, ऑप्शंस सारे वही हैं, बस उनको एक्सरसाइज कैसे करना है इसके लिए एक कह लीजिए एसओपी या स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल जो है वो सेट कर दिया है। वो क्या है स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल? बहुत आसान है। कहते हैं कि सबसे पहले ये हमको ध्यान रखना है कि सभी बैंक्स की टोटल बोरोविंग्स मिलाकर, सभी बैंक्स की कलेक्टिव की बात हो रही है, इंडियन इकोनॉमी में जितना भी बैंक्स है उनका टोटल जितना भी नेट डिपॉजिट और टाइम लायबिलिटीज है उसका जो 1% निकलता है उसका उस लिमिट को भी नहीं क्रॉस होने दे। आप समझिए मेरी बात, तो वो लिमिट भी क्रॉस नहीं होने पावे ओवरऑल भी। ऑब्वियसली ये तो एकदम नेचुरल सी बात है। कहने का अर्थ ये है कि एक बैंक के परिप्रेक्ष्य में तो ये नियम लागू होता ही है, एक किसी बैंक के परिप्रेक्ष्य में तो ये नियम है ही कि अब आप मिस्टर सो एंड सो बैंक आप इस पर्टिकुलर लिमिट से ज्यादा नहीं ले सकते। लेकिन ये इन्फोर्स हो रहा है सही से कि नहीं हो रहा है, इसको देखने का एक और तरीका है ना कि टोटल बैंक्स जितने हैं टुगेदर, सारे बैंक्स जितने हैं उनका सबका इकट्ठा कर लो, नेट डिपॉजिट और टाइम लायबिलिटीज उसका 1% निकाल लो, और टोटल उधार जो आप दे रहे हैं आरबीआई मार्केट में, टोटल जो उधार जा रहा है वो भी इससे ज्यादा नहीं हो। दोनों एक दूसरे का लॉजिकल कोरोलरी ही है एक तरह से देखिए तो, ठीक है, बात समझ गए। तो इस प्रकार से ना ओवरऑल सीलिंग ब्रेक होनी चाहिए कि आरबीआई ने टोटल लोन कितना दिया इस बैंकिंग सेक्टर को,
तो वो पूरे सेक्टर के 1% से भी कम हो, और हर इंडिविजुअल बैंक्स पर भी वो लिमिट फॉलो होनी चाहिए। इंडिविजुअल बैंक्स के बारे में बस एक ही नई चीज और बता देता। तो पहला तो ओवरऑल सीलिंग हो गया, सेकंड स्टेप हो गया इंडिविजुअल सीलिंग कि बैंक्स को इंडिविजुअली भी फॉलो करना है। और उसमें भी देखो जो हम बात करते आए हैं उसी का एप्लीकेशन देख लीजिए। अभी टर्म रेपो का बात किया था ना कि आरबीआई चाहता है कि आप शॉर्ट टर्म में कम, लॉन्ग टर्म में ज्यादा सोचिए। देखिए उन्होंने क्या किया कि ये जो 8% की लिमिट है बैंक्स के ऊपर, उसमें 0.25% ओवरनाइट, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। ओवरनाइट जो बोरोइंग है, रेपो है, वो 0.25% से ज्यादा नहीं हो सकता। अगर उससे ज्यादा भी आपको पैसा चाहिए तो आप इसके वाले में इन्वेस्ट कीजिए, 0.75% लिमिट ये रहेगी। लॉन्ग टर्म रेपो, एलटीआर मतलब लॉन्ग टर्म रेपो। अब आप समझे मेरी बात को, मैं सरल भाषा में समझाने की कोशिश करता हूं। हाँ यह बात सही है कि एक बैंक रेपो वाले इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से अपनी टोटल डिपॉजिट लायबिलिटीज का 1% से अधिक आरबीआई से बोरोइंग नहीं कर सकता है। ये तो हम जानते हैं, पहले से ही जानते हैं। अब इसके अंदर भी इस ओवरऑल 1% की लिमिट के भीतर भी एक कैटेगरी डाल दी गई है। वो कैटेगरी क्या है कि इसमें भी आपका ओवरनाइट वाला लेंडिंग अब 0.25% से ज्यादा नहीं हो सकता है। बाकी का लेंडिंग 7, 14 या 28 दिन वाला लीजिए आप। क्या ये बात समझ में आई? यानी 1% का पूरा 1% आप ओवरनाइट वाला ही लेंडिंग नहीं कर सकते। उसमें से 75% जो है आपको जो है लॉन्ग टर्म वाले में जाना पड़ेगा, यानी टर्म रेपो का इस्तेमाल करना पड़ेगा, लॉन्ग टर्म रेपो की तरफ जाएगी। तो कुल मिलाकर हमारी वही बात आ गई घूम घुमा के कि आरबीआई ये इंश्योर कर रहा है कि बैंक्स जो लोन लें वो एकदम वोलेटाइल वाली लिक्विडिटी नहीं जनरेट करें, थोड़ा लॉन्ग टर्म, थोड़ा सा ज्यादा समय के लिए करें। तो इसलिए लॉन्ग टर्म रेपो का महत्व बढ़ जाता है, ध्यान रखेंगे इस चीज को, ठीक है। और तीसरी चीज है यस डियर, ये जो टर्म रेपो है उनका मैक्सिमम लिमिट जो है वो 28 डेज है। उसके ऊपर फिर वो चालू हो जाता है। क्या चालू हो जाता है? फिर लॉन्ग टर्म फाइनेंस की बात हो रही है, फिर शॉर्ट टर्म बोरोइंग की बात ही नहीं हो रही। फिर तो हम धीरे धीरे जो है वो लॉन्ग टर्म फाइनेंस में चले गए, 5 साल 10 साल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को इन्वेस्ट कर दिया, उसमें चले गए। ये जो कॉल मार्केट का जो सारा गेम है वो यही है। उसमें अगर आप टर्म रेपोज का इस्तेमाल करते हैं तो अपर लिमिट 28 डेज है। बिल्कुल अनिल ठीक है। एनडीटीएल मतलब नेट डिमांड टाइम जो है लाइबिलिटीज हो गया। तो डिमांड और टाइम, जो डिमांड और टाइम लाइबिलिटीज दोनों को मिला लीजिए, उनका नेट निकाल लिया आपने। जो भी नेट आता है उसका एक फॉर्मूला है, उसका 1% से ज्यादा नहीं हो सकता। आपको समझाने के लिए ऐसे समझ लीजिए कि जितना भी जो है डिमांड और टाइम लाइबिलिटीज को जोड़ के जो भी डिपॉजिट आपके पास आए हैं उसका 1% से ज्यादा इसमें जो है बोरोइंग नहीं कर सकते आप। उसका मैं अब आपको बहुत डीप में भी जाकर इसको बताने की कोशिश करता हूँ, लेकिन आपको जानना नहीं चाहिए, एक्चुअली जरूरत नहीं है आपको। इज द टाइम लिमिट ऑल्सो एप्लीकेबल इफ बैंक टेक्स लोन ऑन बैंक रेट? बैंक रेट में क्या होता है? बैंक रेट किस चीज के लिए होता है बताओ? बैंक रेट हमने जो पढ़ा था किस चीज के लिए होता है? बैंक रेट याद आया सबको? पहले तो इसीलिए कोशिश करनी चाहिए ना, पहले हमको सबसे पहले कोशिश ये करनी चाहिए कि हम अपने ही चीजों में से जो है वो आंसर निकालें जो हमने पढ़ा हुआ है। नया चीज क्यों किया जाए? ये देखिए, बैंक रेट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या था? याद आया सबको? बिल्कुल ठीक है। बैंक रेट किस तरह के लोन की बात करता है? शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स के लिए है क्या बैंक रेट? मेरा प्रश्न ये है, दिख रहा है आपके स्क्रीन के सामने ही दिख रहा है, आप तो समझ गए होंगे आप कि वो है ही लॉन्ग टर्म। वो तो इसेंशियली जो है वो लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट ही है कि नहीं है? तो वो एक्सप्लोर किया जा सकता है, उसके लिए अलग अलग गाइडलाइन जो है वो रखी हुई है। लेकिन हम जो अभी ये सब जो सारा पढ़ते हैं, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट, ये सब शॉर्ट टर्म वाले हैं, कॉल मार्केट वाले। ओके ठीक है भाई, तो हम लोग कहां पहुंच गए कि ये जो सो कॉल्ड लिक्विडिटी मैनेजमेंट फ्रेमवर्क का दो स्टेप पढ़ ले गया, और वो स्टेप है ही नहीं, होता पहले से ही जानते थे। बस एक नई चीज जान गए कि जो 1% लिमिट में भी अंदर एक सब लिमिट भी बनाई हुई है, 0.25% ओवरनाइट और 0.75% 7, 14 या 28 दिन वाले का होना चाहिए। ये भाई इतना ही नया बताया मैंने आपको। तीसरी चीज लास्ट, जो कि वो भी आप पहले से जानते हैं, ये दोनों जो भी है 0.25%, 75% वाला, या एक जनरल टर्म बोल लीजिए कि रेपो रेट वाला जो भी ऑप्शन आपके पास था आपने सब एग्जॉस्ट कर डाला। उसके बाद भी आपको पैसे का जरूरत पड़ रहा है, इमरजेंसी क्राइसिस आ गई है, उसके बाद भी आपको मनी चाहिए, तब आप क्या करेंगे?
आपको बताया था, अगर आपको ध्यान हो, इससे ठीक पहले वाली ही स्लाइड में आपको बताया था, यानी लास्ट स्लाइड जो हमारी पिछली क्लास में खत्म हुई थी वो यही थी कि जब बैंक को कोई रास्ता नहीं रह जाता है तब वो कहाँ जाता है दौड़ के, कौन सी फैसिलिटी अवेल करने के लिए जाता है? मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी के लिए जाता है। जब इंटर बैंक जो वो है, बैंक को कोई और बैंक देने को तैयार नहीं है पैसा, एक बैंक दूसरे बैंक के लिए पैसा ही नहीं बचा है, तब किसके पास जाओगे? सिंपल सी बात है भाई, कहाँ जाओगे? मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी का इस्तेमाल करने जाओगे आरबीआई के पास। आरबीआई क्या कहेगा कि ये तो आपको पहले ध्यान रखना चाहिए था, आप जो है समझ नहीं, अपना अपना खुद का ही आप मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, तो आप हायर इंटरेस्ट रेट पे कीजिए। आपको मार्जिनल एमएसएफ जाना है, हाँ बिल्कुल सही बात, 1% से एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है आपको, बाकी लोन जितने में मिलता है उससे 1% ज्यादा भार वहन करना पड़ेगा आपको। और ये उसमें भी लिमिट है, देखो गड़बड़ाना मत, इस चीज को गड़बड़ न कर देना कहीं, ये दो चीजों में कंफ्यूज ना हो, इसलिए क्लियरली बता दे रहा हूँ। वैसे कंफ्यूजन का कोई उपाय नहीं, लेकिन जाने रहिए आप इस चीज को। ये देखिए, ध्यान से देखिए मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी को, इसमें दो अलग अलग जगह पर 1% आ रहा है लिखा हुआ। रुको, इंक बदल रही के तब करी, ये परसेंट जो है वो दो अलग अलग जगह लिखा रहा है, इसमें गड़बड़ाना मत। देखो ध्यान से, आरबीआई ये है और ये है बैंक, ठीक है। ये जो पहला परसेंट है वो कह रहा है कि आरबीआई जिस दर पे पैसा देगा वो जो रेपो रेट होगा उस दिन मार्केट में जो रेपो रेट होगा उससे 1% एक्स्ट्रा रेट पे देगा। यानी रेपो रेट अगर 4% है तो ये मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी के तहत अगर आप लोन ले रहे हैं तो आपको 5% पे करना पड़ेगा। ये वो वाला परसेंटेज है। ये जो नीचवा वाला परसेंटेज है जानते हो कौन सा है? कि ये रेट तो तय हो गया, रेट तो तय हो गया कि इतने रेट पे मिलेगा लोन, लेकिन टोटल कितना लोन ले सकते हैं हम, टोटल अमाउंट ऑफ लोन कितना ले सकते हैं, ये इसके लिए है कि बैंक अपने डिपॉजिट डिमांड और टाइम लायबिलिटीज का 1% से ज्यादा लोन उठा नहीं सकते, या 2% या 3% ये घटा बढ़ाया जा सकता है एमएसएफ को। समझ गए बात? क्लियर हुआ कि नहीं? पता चला सब वही में घोंच दो। ये जो परसेंट खाली लिख के छोड़ दिया है मैंने इसीलिए छोड़ दिया है कि 1% जनरली वो 1% होता है, लेकिन जब आवश्यकता पड़ने पर कभी इस तरह का शॉक, लिक्विडिटी शॉक वॉक लगता है तो आरबीआई उसे अपवर्ड्स एडजस्ट कर सकता है, थोड़ी सीलिंग बढ़ा सकता है कि चलो थोड़ा और पैसा दे देते हैं, एक्स्ट्रा इंटरेस्ट तो तुम भर ही रहे हो, तो तुम्हारी हालत इतनी खराब है तो ले लो, थोड़ा सा और ले लो, कोई बात। अंडरस्टूड? ये दोनों में कंफ्यूज ना होना भाई, बस कहने के लिए इसलिए बता रहे हैं। तो तीसरा पॉइंट वही है, तीसरा पॉइंट वही है, सर इज 1% लिमिट एप्लीकेबल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ लोन्स का क्या मतलब हुआ? नहीं समझाया। नहीं, ये हर एक फैसिलिटी का अलग अलग लिमिट है, याद रखिएगा, हर एक फैसिलिटी की लिमिट अलग अलग है। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी के लिए जो लिमिट एप्लीकेबल है या जो लिमिट प्रेस्क्राइब्ड है, रेपो रेट के लिए जो लिमिट प्रेस्क्राइब्ड है, जरूरी नहीं है कि वो लिक्विडिटी एडजस्टमेंट के लिए भी आपने देख लिया 1% में 0.25% 75% हो गया, इसके लिए भी 1% हो गया। तो मोटा मोटी आप सही बोल रहे हैं कि ये बात सही, इफेक्टिवली तो वही है, यही दो मेन मेथड्स हैं उसके। सच पूछो तो ये शॉर्ट टर्म के लिए कोई लिमिट करता है, लॉन्ग टर्म के लिए जहां तक मुझे ध्यान है ये लिमिट्स उस तरह से अप्लाई नहीं होती लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के लिए। अल्टीमेटली पर्पस आरबीआई का क्या है कि शॉर्ट टर्म को जो है वो स्टेबलाइज रखा जाए या थोड़ा जो है डिसिप्लिन में रखा जाए बैंक। तो इफेक्टिवली बात सही है तुम्हारी कि इफेक्टिवली 1% ही है, चाहे जिस तरह का ऑप्शन अपनाइए अल्टीमेटली 1% की लिमिट आ जाती है। लेकिन जो है ये लिमिट घटती बढ़ती भी रहती है, ध्यान ये रखना है आपको। जैसे मैं उदाहरण ही दे देता हूं आपको, कोविड-19 के रेस्पॉन्स में 2020 में लॉकडाउन मार्च में लग गया था ना, मार्च के लास्ट वीक में, उसके बाद अप्रैल से लेके और जून तक, अप्रैल से लेके जून के बीच में जो है 5 या 6 इंटरवेंशंस किए गए थे, आगे आएगा, 5 या 6 इंटरवेंशंस में किए गए थे जिसमें मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी में भी एडजस्टमेंट किया गया था, और उसमें एक महत्वपूर्ण एडजस्टमेंट ये था कि उसकी लिमिट बढ़ा दी गई थी कि अभी तक 1% था, हम इसको 2% कर देते हैं या हम इसको 3% कर देते हैं, इस तरह से करके। और इससे क्या हुआ बताइए? बैंक्स अब ज्यादा लोन ले पाएंगे, बैंक्स ज्यादा लोन ले पाए, सस्ता नहीं ज्यादा। क्लियर हो रहा है ना दिमाग में? रेट तो जो है वो है 5% मान लो रेट है, वो तो रहबे करेगा, उसको नहीं इफेक्ट किया जा रहा है, 5% को 6% नहीं कर रहा है भाई। इस रेट पे आप कितना लोन ले सकते हैं उसकी बात हो रही। तो जो 1% की लिमिट थी कि अपने लायबिलिटी से 1% ज्यादा नहीं ले सकते, वो 2% कर दी, या 2 था तो 3 कर दी। इस तरह से किया जाता है ताकि बैंक ज्यादा लोन ले सके
और ताकि बैंक ज्यादा लोन लेंगे तो आगे लोन पास ऑन करेंगे मार्केट में, तो लिक्विडिटी एक्सपेंड करेगी। तो जो सब ठहरा हुआ है, रिसेशन जैसी स्थिति है लॉकडाउन के बाद, उसमें थोड़ा सा लिक्विडिटी आएगी तो मार्केट एक्सपेंड होगा, लोगों की डिमांड होगी, बढ़ेगी, थोड़ा सा जिसे कहते हैं वो पुश मिलेगा। समझ गया बात को? इस प्रकार से जो है, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो ये तीन याद रखेंगे कि जनरली कैसे काम होता है। जनरली ऐसे काम होता है कि पहले भैया आप अपना रेपो रेट वाला जितना भी लिमिट है वो एग्जॉस्ट कर लीजिए, और ऑब्वियसली ये आपको समझ नहीं आ रहा है, कॉमन सेंस है कि ऑब्वियसली बैंक पहले चाहेगा कि रेपो रेट वाला इस्तेमाल कर लेते हैं, क्योंकि वो सस्ता है ना लोन। समझे हमारी बात? वो लोन तो सस्ता है ना, तो नेचुरली भी वो पहले तो रेपो रेट एक्सरसाइज करेगा ना, क्योंकि वो सस्ता लोन है। जब उसके पास ये ऑप्शन खत्म हो जाएगा कि जितना ले सकते थे ले लिए भैया, अब नहीं पॉसिबल हो रहा है, तो इसके 1% खत्म हो गया आपका, अब 1% और ले सकते हैं, लेकिन वो एमएसएफ में आएगा और 5% का उसका जो है वो रेट रहेगा भैया, यानी 1% ज्यादा रेट, जो कुछ भी इसका रेट होगा उससे 1% ज्यादा इसका रेट होगा। तो कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि 1% हमने रेपो रेट के थ्रू ले लिया, और उसके ओवर एंड अबव, कंफ्यूज ना होना, आदित्य का सवाल जो था शायद इस डायरेक्शन में था कि ओवर एंड अबव दिस लिमिट, ये जो रेपो वाली लिमिट है, इसके ऊपर एमएसएफ भी ले सकते हैं, समझ गए बात? तो 1% तो यही था, 1% और मिला के वो हो गया, तो 2% जैसा लोन उठा लिए। एमएसएफ अगर 3% हो गया है तो 3 + 4 4% हो जाएगा, 3 + 1 4% हो जाएगा। समझे कि 1% अपनी लायबिलिटी का 1% लोन यहां से ले लिए, मान लो टोटल लायबिलिटी 100 रुपए है बैंक की, नेट एनडीटीएल की वैल्यू 100 रुपए है मान लो, तो 1 रुपए जैसा लोन तो आरबीआई से ले लिया इस रेट पे, और अगर मान लो 3% है रेट तो 3 रुपए और मिल गया इस रेट पे। तो इंटरेस्ट रेट सिग्नलिंग हो रही है, देखो कि अगर आपको अनुशासन में रहेंगे तो आप सस्ता लोन लेंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए, आप अनुशासन तोड़ेंगे तो आपको लोन फिर बहुत महंगा पड़ेगा। ध्यान रखिए चीज को, आप पहले से मैनेज कीजिए, नहीं तो लिक्विडिटी क्राइसिस होगी तो हम अमाउंट तो बढ़ा देंगे, क्योंकि बैंक बचाना है हमको, है ना, बैंक को डूबने नहीं देना है, आरबीआई का काम है, आरबीआई इज द लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट, एब्सोल्युटली। So this particular institution will come and step into helping the banking institution, but at the same time, it will make it costlier, and that is the indirect method of disciplining somebody. That is how you discipline. इस बात को ध्यान रखना। तो जो है ना, उसके कहते हैं ना कि जो है हमेशा कुटाई की जरूरत नहीं है ना। बच्चे को बच्चा पाल रहे हैं, मान लीजिए तो आप उसको हमेशा मार पीट के ये नहीं करना, वो नहीं करना, उसके ऊपर ये लगा दीजिए ना कि 1 घंटा वीडियो गेम देखोगे, 1 घंटा अगर वीडियो गेम देखोगे तो उसका जितना भी वीडियो गेम आपको देखना है उसका 2.5 गुना 3 गुना आपको लिखना है, आपको राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, हो गया काम। आपकी चॉइस आपके हाथ में दे दिया हमने। यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? सुखेंदु दास पूछते हैं कि एमएसएफ यूज एसएलआर कोटा, जिसे इस पर तो पहले ही बात हो चुकी है, ऑलरेडी एवरीबॉडी नोज कि एमएसएफ महंगा लोन देता है और उसमें ये फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है कि एसएलआर में रखी हुई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज भी आप आरबीआई के हवाले कर सकते हैं। तो जानते ही हैं, बार बार रिपीट करने का कोई फायदा नहीं, यहां तक आप समझ गए, मैं ऐसा मानता हूं। तो इस प्रकार लिक्विडिटी मैनेजमेंट फ्रेमवर्क दरअसल एक तरह का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, जिसके तहत आरबीआई ने कुछ लिमिट्स निर्धारित कर दी है, नंबर 1, और नंबर 2 कुछ ऑप्शंस दे दिए हैं कि पहले आप ये ऑप्शन एक्सरसाइज कर लीजिए, उसके बाद आप ये ऑप्शन भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। समझ गए? तो पहले एलएएफ एक्सरसाइज करेंगे आप, उसके बाद वो नहीं काम हो रहा तो आप एमएसएफ भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। बस अंतर यही है कि उसका वो थोड़ा महंगा पड़ेगा। कुल मिलाकर बात यह है, इससे क्या होगा, इससे स्टेबिलिटी थोड़ा ज्यादा आएगी और बेटर इंटरेस्ट रेट सिग्नलिंग होगी कि आपको पता चल जाएगा कि मार्केट में लिक्विडिटी पोजीशन क्या चल रही है, सिग्नल होगा आपके लिए इंटरेस्ट का। अगर लोग एमएसएफ लेने को तैयार हैं, समझिए मेरी बात को, सिंपल सी बात है कि इतना होने के बावजूद भी लोग मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी के लिए आने को, बहुत सारे बैंक आ रहे हैं, तो आपको तुरंत पता लग जाएगा ना भाई, आरबीआई को तुरंत लग जाएगा कि बहुत हालत खराब है मार्केट का, लिक्विडिटी का क्राइसिस बहुत ज्यादा है, क्रंच बहुत ज्यादा है, एंड द अदर वे अराउंड आल्सो फ्रॉम द साइड ऑफ द बैंक्स आल्सो। समझ गए इस बात को? ये हम सब लोग बहुत अच्छे से इन डेप्थ इसको पढ़ चुके हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी ने अपना स्वरूप कैसे बदला है। हमने ये भी देखा था, जो कि हम हमेशा से बात करते आए हैं, और उसको कंक्रीट टर्म्स में हमने देखा था कि भाई मॉनेटरी पॉलिसी किसी भी देश की जैसे जैसे उसमें जो है वो आर्थिक जिसे नवीनता आती है, इकोनॉमिक मॉडर्निटी जैसे जैसे किसी इकोनॉमी में आती है, आगे बढ़ता है, yes, for the purposes of call money market, they are part of the same call money market,
एनबीएफसी के लिए थोड़ा सा रूल अलग हो जाता है, बैंकिंग सेक्टर में वो भी गिने जाते हैं। हाँ, तो हम बात कर रहे थे, ये बात कर रहे थे, एंड व्हाट वर वी टॉकिंग अबाउट दैट जैसे जैसे इकोनॉमिक प्रोग्रेस आती है कंट्री में, इंस्टीट्यूशंस डेवलप होते हैं, वैसे वैसे डायरेक्ट इंटरवेंशन करने के बजाय सेंट्रल बैंक जो है यानी आरबीआई जो है वो ये पसंद करता है कि उसको इनडायरेक्टली इंटरवीन करके काम हो जाए, जो हम अभी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इनडायरेक्ट, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड्स जो है आपके सामने है। मैं इस पर कोई प्रीलिम्स जैसा क्वेश्चन एक्सपेक्ट नहीं करता कि लोग पूछ लेगा कि इनमें से कौन सा डायरेक्ट मेथड है, कौन सा इनडायरेक्ट नहीं, क्योंकि वो डिबेटेबल है। इंटरनेट जैसे मॉनिटरी फंड वाला एक आर्टिकल में पढ़ रहा था, तो उसमें जो है वो रिजर्व रेशियो को भी जो है वो इधर गिन रहा है, तो उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है। बट आपके लिए वो मैटर नहीं करता है, आपके लिए मैटर सिर्फ ये करता है कि आरबीआई डंडा चला रहा है या फिर जो है वो डंडा रख दिया है नीचे, और सिर्फ जो है वो इंसेंटिव्स, इंड्यूसमेंट इस तरह से काम काम कर रहा है। तो जैसे जैसे इकोनॉमी प्रोग्रेस करती है, मॉडर्न होती जाती है, वैसे वैसे मनी मार्केट में भी आरबीआई का डायरेक्ट इंटरवेंशन कम और इनडायरेक्ट इंटरवेंशन ज्यादा होता जाता है। आपको ध्यान होना चाहिए। फिर हमने बात की थी कि मॉनेटरी ट्रांसमिशन क्या होता है ना, आपको जो है मैंने बताया था हल्का सा, ये जान लीजिए, जरूरी है आपके लिए। हो सकता है कहीं ना कहीं आपको ये वर्ड यूज करें तो आपको अच्छे मार्क्स मिल जाए, और अगर लकी रहे तो हो सकता है इससे रिलेटेड क्वेश्चन ही आ जाए। मॉनेटरी ट्रांसमिशन का सीधा मैटर यह है कि जब हम, आरबीआई बैंक को जिस रेट पर लोन दे रहा है उसमें जब वो चेंज करता है तो वैसा ही चेंज यहाँ भी रिफ्लेक्ट होना चाहिए ना भाई। अगर आरबीआई लोन को यहाँ सस्ता कर देता है तो फिर उसी अनुपात में ये जो लोन पब्लिक को जा रहा है बैंक से वो भी सस्ता हो जाना चाहिए। कहने का अर्थ क्या है, अब इन्हें टेक्निकल टर्म्स में कैसे कहा जाएगा ना, टेक्निकल टर्म्स में कहा जाएगा कि आरबीआई के द्वारा पॉलिसी रेट में अगर कोई चेंज हो, टेक्निकल, अब जैसे बोल रहा हूँ, आप लोग यूपीएससी के स्टूडेंट हैं, खाली देहाती गंवार टाइप का तो वहां लिख नहीं सकते, तो आप कहें कि आरबीआई के द्वारा पॉलिसी रेट में किया गया चेंज बैंक्स के द्वारा लेंडिंग रेट में के चेंज के रूप में परावर्तित होना चाहिए। इट शुड बी रिफ्लेक्टेड इन द रेट ऑफ लेंडिंग रेट ऑफ बैंक्स। कुल मिलाकर बात ये है। ठीक है भाई, इसे मॉनिटरी ट्रांसमिशन कहते हैं, मनी ट्रांसमिशन या मॉनिटरी ट्रांसमिशन कहते हैं। उदाहरण के तौर पर भी मैंने आपको बताया था कि 2015-16 का एक उदाहरण दिया गया, तभी से चिंता बढ़ी, आरबीआई की चिंता इस दिशा में तभी से बढ़ी, आज से 6 साल पहले से, कि रेपो रेट में रिडक्शन किया 1.25% का, और टोटल जो रिडक्शन हुआ लेंडिंग रेट में वो सिर्फ 0.6% है। यानी यहाँ जो है 1.25% का कमी कर दिया हमने रेपो रेट में, कि आपके लिए आज से यह लोन, रेपो वाला जो लोन है वो 1.25% सस्ता किया जाता है। तो यूं होना चाहिए था ना, अरे चलो 1.25 नहीं हो तो 1 तो हो, पता चला उतना नहीं हुआ, आधा हुआ, 0.6% हो रहा है। सरकारी योजनाओं के तहत दिए गए इतने बड़े बड़े लोन का बर्डन किसके ऊपर होता है? जो बैंक देगा उसके ऊपर होगा, सिंपल सी बात है। जो सरकारी योजनाएं होती हैं उनका फाइनेंस कैसे होता है, पब्लिक फाइनेंस कैसे होता है बताएं? पब्लिक फाइनेंस कैसे होता है? गवर्नमेंट अपनी योजनाओं के लिए किससे बोरो करती है बताइए? बोरो किससे करती है गवर्नमेंट? अगर आप इसका आंसर जानते हैं तो अब ऑब्वियसली आपका उत्तर अपने आप ही हो गया, सोचकर देखें आप। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है क्या कि गवर्नमेंट, अरे भाई आरबीआई के फंक्शंस में पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे कि आरबीआई इज अ बैंकर टू द गवर्नमेंट, आरबीआई इज अ बैंकर टू द बैंक्स? सब भूल गए? कोई बात नहीं, हाँ जानते हो तो डरा मत करो। नहीं सर, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, वो पढ़ेंगे हम पब्लिक फाइनेंस पे, आपको ज्यादा डिटेल में पता चल जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं। तो यहाँ तक बात समझ गए कि एक्चुअली मॉनेटरी ट्रांसमिशन क्या होता है, कि जो पॉलिसी रेट में किया गया चेंज लेंडिंग रेट में किए गए चेंज के रूप में परावर्तित होना चाहिए, बात खत्म। पॉलिसी रेट कहने की बात हो गई कि पॉलिसी, वैसे पॉलिसी रेट होता क्या है, जरा चैट बॉक्स में लिखो तो, व्हाट इज पॉलिसी रेट बाय द वे? इतना बोल रहे हैं पॉलिसी रेट बताइए तो जरा। जल्दी गूगल करके लिख रहे हो तो तुम जैसा गया गुजरा कोई नहीं।
गलत हो जाओ ना, लिखो और गलत साबित हो जाओ, गूगल करने की जरूरत नहीं, चिरकुटाई वाला काम नहीं। आदित्य का कहना है कि रेपो रेट ही पॉलिसी रेट है। क्या ये बात सही है? और क्या इतना टाइम लगना चाहिए आप लोगों को ये चीज, छोटी सी चीज बताने में? रेपो रेट होता है पॉलिसी रेट, यही सीखा है आपने अभी तक? रेपो रेट को पॉलिसी रेट बोलते हैं। ये लॉजिक है आदित्य का कि रेपो रेट चेंज कर देते हैं तो बाकी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाती है चीजें, इसलिए रेपो रेट जो है उसको पॉलिसी रेट बोलना चाहिए। ऑफ कोर्स यही बात है। कहाँ हो तुम लोग भाई? है 100 की भीड़ में 1-2 लोग खाली जवाब देगा और पढ़ेगा तो कैसे काम चलेगा? ये किसी को याद है कि नहीं याद है भाई? इस डायग्राम पर कितना बल देकर सबको समझाया था। बिल्कुल सही चल, एकदम सही बात है। रेपो रेट जो होती है, रेपो रेट रिवर्स रेपो रेट को बेस रेट कहिए। रेपो रेट ही तो है जो चेंज करते हैं हम, एक चेंज कर देने से बाकी सब अपने आप चेंज हो जाता है। तो पॉलिसी को जो लोग पॉलिसी बना रहे हैं, कह लीजिए जो पॉलिसी रेट है वो क्या होगी? रेपो रेट होगा, एंड दैट्स ऑल। India now has only a single policy rate, and that is called repo rate, because change other rates are pegged, other rates are calibrated to repo rate only. You adjust the repo rate, and other rates will get adjusted automatically. यही तो बात की जाए, ये भी नहीं ध्यान से आप सुन रहे हैं तो that's none of my concerns. Okay, we help only those who help themselves. अदर बाकी लोगों के लिए यहाँ पर वो नहीं खोल रखा है। आगे बढ़ते हैं। तो भाई यहां तक आप समझ गए, ठीक है। मॉनिटरी ट्रांसमिशन, आप ध्यान रखें कि मॉनिटरी ट्रांसमिशन का जो है वो व्यावहारिक मायने में क्या मतलब है। मॉनिटरी ट्रांसमिशन का डेफिनेशन तो सर आपने बता दी, लेकिन एक्चुअली मॉनिटरी ट्रांसमिशन कब कहा जाए कि अचीव किया हमने? आरबीआई कब इस बात से संतुष्ट होकर बैठ सकती है कि हमने मॉनिटरी ट्रांसमिशन हमारा ठीक हो गया? उसके तीन पहलू हैं, ध्यान समझिए। रेट के स्ट्रक्चर पर उसका प्रभाव पड़े। रेट स्ट्रक्चर मतलब इंटरेस्ट रेट, यहाँ वाला, ये जो अभी बात किए थे हम लोग। इंटरेस्ट रेट जो है उसके स्ट्रक्चर पे जितने तरह के लोन जा रहे हैं, नए लोन, आउटस्टैंडिंग लोन, फ्री फ्लोटिंग, वो सब होते हैं ना, वो लोन, जितने भी इस तरह के लोन है, उनके रेट के स्ट्रक्चर पर प्रभाव पड़े, नंबर एक। नंबर एक, कितना लोन पास ऑन हो रहा है। अब भाई आरबीआई ने लिक्विडिटी को ईज करने के लिए, ध्यान से सुनिए मेरी बात, आरबीआई ने अगर रेपो रेट को कम किया है या कोई भी रेट को कम किया है, पॉलिसी रेट को, तो इसीलिए तो क्यों कि इनके पास लिक्विडिटी बढ़ जाए, है कि नहीं भाई? तो अब आपके पास हम लिक्विडिटी बढ़ा रहे हैं तो आप यहां भी तो लिक्विडिटी बढ़ाइए भाई, एक्सपेंशन तो हो, क्रेडिट का एक्सपेंशन होना चाहिए फिर उस हिसाब से। तो क्वांटम ऑफ क्रेडिट बढ़ा कि नहीं बढ़ा? रेट चेंज हुई कि नहीं हुई? क्वांटम ऑफ क्रेडिट बढ़ा कि नहीं बढ़ा? लास्ट वाला बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, टर्म स्ट्रक्चर। ये सारा पैसा जो यहां पर आया लिक्विडिटी फ्री होने को, उसका तुम किए क्या, इस्तेमाल किस रूप में किए? सारा का सारा जो है शॉर्ट टर्म लोन में फंसा के खत्म कर दिए। पता नहीं, ऐसे नहीं बोलना चाहिए मुझे, शॉर्ट टर्म लोन कोई गलत बात नहीं होती, मैं बस कह रहा हूं कि शॉर्ट टर्म लोन में ही सब यूज हो गया या लॉन्ग टर्म फाइनेंस की तरफ भी चीजें गई। तीसरी चीज ये है, आप समझ गए कि मॉनेटरी ट्रांसमिशन का जो प्रैक्टिकल इफेक्ट है वो तीन पहलुओं से देखा जा सकता है। एक कि इंटरेस्ट का रेट जो आप चार्ज कर रहे हैं उसमें क्या फर्क हुआ, जो क्रेडिट जितना आपको सप्लाई मार्केट में करना चाहिए इस छूट के बाद, वो आपने किया कि नहीं किया, कितना किया। और तीसरा, जिस प्रकार का काम करना चाहिए, जिस प्रकार का लोन देना चाहिए, वो किया कि नहीं किया। ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर शॉर्ट टर्म क्रेडिट्स में रिलीफ मिल रहा है तो यहाँ भी शॉर्ट टर्म क्रेडिट्स में इंक्रीज होना चाहिए, एक नेचुरल वो है। हालांकि ये इस तरह की कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन नेचुरल इफेक्ट इसका ये आना चाहिए। अगर ऐसा इफेक्ट नहीं आ रहा है तो मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं, और आप सिर्फ लॉजिक के बेसिस पे, इंफॉर्मेशन नहीं या अपने अवेलेबल नॉलेज के बेसिस पे नहीं, आप लॉजिक के आधार पर बताइए कि अगर ये चीज नहीं हो पा रही है तो दिक्कत कहां हो रही है, बताएं। मेन प्रॉब्लम आखिर क्या हो सकती है? क्या मैं ऐसा कहूं तो ठीक है कि अगर इस घटना का इफेक्ट इस घटना पर नहीं पड़ रहा है तो इसका मतलब यहीं कहीं कुछ बदल जा रहा है, इस बीच में ही, यही इस बीच में कुछ चेंज हो जा रहा है।
वो चेंज मैं आपको बताता हूं कि वो डिविएशन क्यों होता है, ये आपको जानना चाहिए। ठीक है, पहले बता देता हूं, फिर एक्सप्लेन बाद में उसको करते हैं। आप इस बात को समझ लें, यही बता, इसी चित्र से बता देता हूं। बैंक और सारा गेम एक एक फ्रेज में खत्म कर देता हूं, वो फ्रेज आप ध्यान रखिएगा हमेशा। बिल्कुल आदित्य, वो सब तो रहेगा ही, एकदम सही बात है। ये सब घूम घुमा के जितने भी फैक्टर्स हम डिस्कस कर सकते हैं, बहुत सारे कर सकते हैं कि मॉनेटरी ट्रांसमिशन क्यों वीक है, ये मैं आपको नोट्स भी दे दूंगा, कोई इशू नहीं। लेकिन समझें, कुल मिलाकर घूम के बात यहां आएगी कि इस बैंक को कॉस्ट ऑफ बोरोइंग कितनी पड़ रही है। मानते हैं कि नहीं मानते हैं? अरे भाई, सारी बात यही तो हो रही है। बैंक को अपने फंड्स के लिए कॉस्ट ऑफ बोरोइंग क्या पड़ रही है, और क्या आरबीआई के ये छूट वगैरह देने से कॉस्ट ऑफ बोरोइंग एक्चुअली कम हो रही है कि नहीं? बताओ, सहमत हो कि नहीं इस बात से? बहुत छूट मिली जा रही है, लेकिन उससे फर्क ही नहीं पड़ रहा हमको। हमको तो 50 जगह से पैसा उठाना है। बैंक है हम, तो हमको 50 जगह से पैसा उठाना है, वो कॉस्ट कम नहीं हो रही है। आपने जो कॉस्ट कम किया भी है, उसको तो बहुत छोटे से अमाउंट पे फर्क डाल रहा है, क्योंकि हमारी जो बोरोइंग है वो स्प्रेड है, और सोर्सेज है, बहुत सारी जगह से स्प्रेड है। समझ गए मेरी बात? तो जब तक बैंक्स के लिए इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ बोरोइंग कम नहीं होगी, रेपो रेट में किया गया कोई भी परिवर्तन, या पॉलिसी रेट के लिए चलिए, पॉलिसी रेट में किया गया परिवर्तन जब तक बैंक्स के कॉस्ट ऑफ बोरोइंग को डायरेक्टली अफेक्ट नहीं करेगा, तब तक मॉनेटरी ट्रांसमिशन वीक ही रहेगा। क्या यह लाइन बोलना सही है? है ना भाई? सिंपल सी बात है, तो सीधा सीधा लॉजिकल स्टेटमेंट है। तो देखिए क्या क्या हुआ है, थोड़े से घटना बैकग्राउंड जान लीजिए और बस बात खत्म। 1994 में आरबीआई ने डीरेगुलेट कर दिया था कॉमर्शियल बैंक लेंडिंग रेट। ठीक है, कि हमारा उस पर कोई इख्तियार नहीं है। ये क्या होता है कॉमर्शियल बैंक लेंडिंग रेट? यही वाला रेट हुआ यार भाई। पहले आरबीआई इसको भी तय करता था कि आप लोन कहाँ कितना में देंगे। अभी मार्केट ड्रिवन हो गया है, और होना भी चाहिए, है नहीं? 94 आप समझ सकते हैं, 1994 की बात हो रही है। 1992-93 में एक मेजर डेवलपमेंट क्या हो चुका था, कोई बताओ? जो हम पढ़ रहे हैं उसके परिप्रेक्ष्य में 92-93 में बहुत मेजर चेंज क्या हुआ था? नौ तो पहले हो चुका था हमको। लिक्विडिटी से संबंधित कोई चीज, डायरेक्ट नहीं लेकिन इनडायरेक्ट। बतिया सब सही है आपका, कोई आंसर गलत नहीं है, सारे सारे आंसर ही कहीं ना कहीं सही है अपने अपने उसमें डोमेन में। लेकिन मेन चीज क्या हुई थी? करेंसी से रिलेटेड कोई चीज जानते हैं कुछ? कोई घटना ऐसी हुई हो एक्सचेंज रेट, करेंसी वगैरह से रिलेटेड? पहुंच रहे हैं धीरे धीरे। यही ट्रांजिशन पीरियड था ना, 92-93 का ही तो ट्रांजिशन पीरियड था भाई। कौन से टाइप के फॉरेक्स से कौन से टाइप में हम आ गए, लिखो उसको चैट बॉक्स में। अदरवाइज व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ आई मीन वेस्टिंग सो मच ऑफ एनर्जी देन? टेल मी, क्या सिस्टम फॉलो करते थे और कहां आ गए थे फिर हम? दो स्टेप में धीरे 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 ट्रांजिशन किए थे। किसका ट्रांजिशन किए थे भाई? ओहो, फिक्स्ड और फ्लोटिंग पे हुए थे ना भाई? नहीं नहीं नहीं, मैंने एक्सप्लोर किया संकेता, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है शुभम, बिल्कुल ठीक बात। ये एक मेजर घटना हुई थी ना। अरे घटनाएं तो सारी हुई थी जो आप लिख रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन लिक्विडिटी करेंसी जो फॉरेक्स के संदर्भ में क्या हुआ था कि पहले 100% फिक्स था। आपको ध्यान होगा, पहले फिक्स हुआ करता था। ठीक है, आरबीआई जो है वो 5% का इधर उधर कर सकता था। फिर क्या हुआ, 60 और 40 का याद नहीं है कि पहले 60 और 40 किया गया खाली, और उसके बाद 100% मार्केट को सरेंडर कर दिया गया कि जरूरत पड़ने पर सिर्फ आरबीआई बीच में उतरेगा, अब मार्केट के हवाले बात। ठीक है, ध्यान रखिए, याद रखा करिए। खैर, तो आरबीआई ने एक ये भी स्टेप ले लिया फिर साथ साथ
बाकी स्टेप्स के साथ साथ कि कॉमर्शियल बैंक का जो लेंडिंग रेट है उसको डीरेगुलेट कर दिया कि अब हमारा उस पर कोई इख्तियार नहीं, मार्केट के हवाले, उसे भी मार्केट के हवाले कर दिया। फिर क्या हुआ, लेकिन दिक्कत होती है ना, उससे इतना आसान नहीं है, बैंक्स को उनके हवाले छोड़ दीजिए तो थोड़ा दिक्कत होती है। आरबीआई आस्क्स द बैंक्स टू अनाउंस फॉर्मूला बेस्ड बेंचमार्क with an option to lend below PLR in deserving short-term credits like export credit। ऐसे नहीं समझ में आएगा, अब मैं बहुत सरल भाषा में आपको समझा देता हूं कि बैंक्स ने कहा कि आपके द्वारा दिए गए जो भी लोन्स हैं उन पे हमारा अभी कोई इख्तियार मैं नहीं रखता, इंटरेस्ट रेट पे आप चार्ज कीजिए, वो बात ठीक है, लेकिन आप कुछ तो बेंचमार्क रखिए कि आप क्या इंटरेस्ट रेट चार्ज करने वाले हैं, उसका एक साइंटिफिक फॉर्मूला होना चाहिए। ऐसे समझो कि आपकी कॉस्ट ऑफ बोरोइंग कुछ होगी, उस कॉस्ट ऑफ बोरोइंग पे थोड़ा सा प्रॉफिट गिन लीजिए और वो इंटरेस्ट रेट फिक्स कर दीजिए, फिर कि आपका प्रॉफिट भी हो जाए और हर बार भी बहुत नहीं फ्लक्चुएट भी नहीं हो इंटरेस्ट जो कि मार्केट को जो है रिप्रेजेंट ना करती हो। ऐसा भी नहीं हो कि अननेचुरल इंटरेस्ट रेट आप चार्ज करने लगे, आपकी कॉस्ट ऑफ बोरोइंग होगी बिल्कुल, और आप बिजनेस कर रहे हैं भाई, प्रॉफिट के लिए कर रहे हैं। सो आप एक साइंटिफिक मेथड बनाइए जिससे आप जो चार्ज करने वाले हैं वो आपके कॉस्ट ऑफ बोरोइंग से थोड़ा सा ज्यादा हो, वो आप देख लीजिए कि आपका, उस पर भी हम बहुत ज्यादा बल नहीं डालते, लेकिन होना चाहिए, वैज्ञानिक तरीका होना चाहिए कोई, ठीक है। और उसके बाद भी ऑप्शन दिया कि भाई हम एक बेस फिक्स कर देंगे कि इससे नीचे मत जाइए, ठीक है। एक मेथड आप बनाइए, फॉर्मूला आप बनाइए, एक बेंचमार्क बना दीजिए कि ये बेंचमार्क हो गया और इसके नीचे नहीं जाना है रेट, या इसको नहीं करना है। उसके बाद भी हम आपको अलाउ करेंगे कि कुछ एक सेक्टर्स जो कमजोर सेक्टर्स है जिनको सपोर्ट की जरूरत है, अगर आप उन्हें लोन दे रहे हो तो आप उससे कम पे भी दे सकते हैं, कोई बात चलेगा, ठीक है। ये देखो, लेंड बिलो द प्राइम लेंडिंग रेट इन डिजर्विंग शॉर्ट टर्म क्रेडिट, शॉर्ट टर्म क्रेडिट में एक्सपोर्ट को सपोर्ट करने के लिए दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन किया क्या बैंक्स ने थॉरोली ये जो छूट मिली थी कि आप प्राइम लेंडिंग रेट के नीचे भी कर सकते हैं लेंडिंग, इसको खूब बढ़िया से जो है मिसयूज किया, ठीक है। और ऐसे सेक्टर्स को किया जिनको मतलब सारा पैसा इसी में खूब डाल दिया खूब इधर उधर के, ताकि जो है कहते हैं ना बिजनेस बढ़ जाए और क्रेडिट एक्सपैंड हो जाए, वो सब ठीक है, लेकिन उसको वायोलेट किया उन्होंने, अपने ही फॉर्मूला को नहीं माना। जब नहीं माना तो आरबीआई ने फिर 2010 में इस चीज को रिव्यू किया और गाइडलाइंस इशू किया, बेस रेट सिस्टम फिक्स कर दिया गया कि किसी भी सेक्टर में एक बेस रेट में हम बता देंगे, उससे नीचे आप नहीं कर सकते, ठीक है। हम आपको हर सेक्टर का इंटरेस्ट फिक्स करने नहीं बैठेंगे, नहीं तो फायदा क्या रहेगा डीरेगुलेशन करने का, लेकिन नीचे का लेवल हम फिक्स किए दे रहे हैं कि इससे नीचे आप नहीं दे सकते भैया, बेस रेट से नीचे लैंडिंग नहीं करेंगे आप, ठीक। नहीं तो बैंक खत्म हो जाएंगे ना, सब इस तरह से करने पे जाएंगे अगर, और फिर पैसा डूबने लगा सस्ता लोन के चक्कर में, तो सब गड़बड़ हो जाएगी ना। तो ड्यू टू फिर 2016 में क्या हुआ, 4-5 साल चला ये चीज, फिर ड्यू टू इनफ्लेक्सिबिलिटी ऑफ बेस रेट, तो इनफ्लेक्सिबल है, वो तो फ्लेक्सिबल हो नहीं सकती है, तो मॉनेटरी ट्रांसमिशन फिर से बहुत वीक हो गया कि आप यहाँ पे कुछ चेंज कर रहे हैं लेकिन वो चेंज वहां पर ट्रांसलेट हो, इसके बीच में एक बाधा है। वो बाधा क्या है कि इससे नीचे तो वो कर ही नहीं सकते, बेस रेट तो फिक्स्ड है, तो आप चाहे जितना नीचे कर दो, उनके लिए बेस रेट से नीचे जाना संभव नहीं। आप समझ रहे हैं मेरी बात। आरबीआई जो पॉलिसी रेट को नीचे कर भी दे बहुत ज्यादा, तो भी बैंक्स के लिए बेस रेट फिक्स हो गया है, उससे नीचे वो जा नहीं सकते, तो मॉनेटरी ट्रांसमिशन वीक नहीं हो जाएगा कि हमारे किए का कोई इफेक्ट वहां नहीं पड़ा। इसलिए नहीं पड़ा क्योंकि उनके लिए एक बैरियर है, उससे नीचे नहीं जा सकते, ठीक। इसलिए बेस रेट भी उतना सक्सेसफुल साबित नहीं हुआ। तो फिर कहा गया कि अब एक ऐसा फॉर्मूला निकालिए जो कि इन सारी समस्याओं का कुछ ख्याल रख ले और मॉनेटरी ट्रांसमिशन को जो है वो एडवर्सली अफेक्ट नहीं करे, ठीक है। तो कहा गया उस फॉर्मूले को जो है 3 कंपोनेंट्स के आधार पर, 3 कंपोनेंट्स उस फॉर्मूले में रखे गए, उनके आधार पर इसे फ्लोट किया गया, ठीक है। और कहा गया इसका नाम रखेंगे मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स लेंडिंग रेट, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स लेंडिंग रेट, कि आपकी मार्जिनल कॉस्ट क्या है फंडिंग के लिए, वो रेट ले लीजिए, फिर क्या रिटर्न मिल रहा है नेटवर्थ पे वो ले लीजिए, और आपको बैंक चलाने के लिए, लोन चलाने के लिए ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या क्या खर्चा करना पड़ता है वो ले लीजिए, सब मिला दीजिए, इनके आधार पे आप इंटरेस्ट रेट फिक्स कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, और फिर आप लेंडिंग करिए। तो एमसीएलआर इस प्रकार से याद रखिए कि एमसीएलआर दरअसल, ध्यान से सुनो मेरी बात, अगर नहीं समझ में आया तो सुन लो मेरी बात। अगर कोई कहे कि बेस रेट नुकसान कर रही है, ठीक, तो क्या करोगे? तो बोलो कि भाई हम क्या करें, उन्होंने ही अपना मेथड साइंटिफिक नहीं रखा है,
और उससे डिविएट होते हैं तो हम क्या करें? तो बोला कि अच्छा तो बीच का रास्ता निकालिए भाई। तो कहा गया कि देखिए अब आगे से आप अपने फंड्स का जो बोरोइंग है उसका कॉस्ट निकाल लीजिए, ठीक, मार्जिनल कॉस्ट निकाल लीजिए कि हर एक्स्ट्रा 1 रुपया आपको बोरो करने में कितना एक्स्ट्रा इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, मार्जिनल कॉस्ट। तो मार्जिनल कॉस्ट निकाल लीजिए, एक्स हो गया वो। दूसरा कंपोनेंट हो गया कि जो नेट वर्थ है उस पर रेट ऑफ रिटर्न कितना आपको मिलता है, दो हो गया वाई। और जेड तीसरा कंपोनेंट हो गया कि आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या है। अगर इन तीनों का निचोड़ आप अपने फॉर्मूला में साबित कर लीजिए तो जो भी इंटरेस्ट रेट इसके परिणाम स्वरूप फिक्स होगा वो नेचुरल होगा कि आपके आपके बिजनेस का जो है वो सीधा सीधा जो है वो परावर्तन होगा, सीधा रिफ्लेक्शन होगा बिजनेस का, है कि नहीं है? तो इससे थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट हुआ लेकिन इनएडिक्वेट हुआ, वो इंप्रूवमेंट बहुत अच्छे से नहीं हुआ भाई। और फिर इंटरनल वर्किंग ग्रुप जो आया उसने सजेस्ट किया कि कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा मिसमैच हो रहा है। और वो मिसमैच क्या है? सुनो मेरी बात ध्यान से, इसी चित्र को वापस देखो और एक झटके में समझ के इसको खत्म करते हैं, कोई ऐसा गूढ़ कॉन्सेप्ट नहीं है। देखो ध्यान से सुनो मेरी बात। अभी तक क्या हुआ कि आरबीआई ने पहले बेस रेट फिक्स कर दिया कि इससे नीचे नहीं लेंड करने देंगे, वो नुकसानदायक साबित हुआ। फिर क्या कहा आरबीआई ने कि अगर बेस रेट नुकसान कर रहा है तो हम आपको ही बोलते हैं भाई कि आप एक ऐसा मेथड इजाद कीजिए, MCLR। आप खुद एक फॉर्मूला बना दीजिए जिसके कुछ कंपोनेंट्स हो, आपके बिजनेस को सही से रिफ्लेक्ट करते हो, बस आप इंटरेस्ट चार्ज कर लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। ये भी उतना इफेक्टिव साबित नहीं हुआ। तब कहा गया कि ये क्यों दिक्कत हो रही है भाई, आखिर मॉनेटरी ट्रांसमिशन आखिर वीक क्यों रह जा रहा है इतना सब स्टेप्स लेने के बाद भी, व्हाई? तो कहा गया वो इसलिए क्योंकि ये सब आप इनके ऊपर छोड़े हुए हैं। इंटरनल बाहर जो मार्केट है, बाहर का जो इन्वायरमेंट है, बाहर जो पॉलिसी रेट चल रहा है, बाहर जो इंटरेस्ट रेट चल रहा है लोगों के लिए, उसका कोई इसमें रिफ्लेक्ट करने वाला कोई कंपोनेंट नहीं है इस फॉर्मूला में। सब अंदरूनी आप कर रहे हैं कि बैंक को कितने में पैसा मिला, बैंक की ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या है, दैट्स द प्रॉब्लम। सो इन प्लेस ऑफ इंटरनल बेंचमार्क्स देयर शुड बी एक्सटर्नल बेंचमार्क्स जो कि मार्केट को रिफ्लेक्ट करते हो। और इसलिए इस फॉर्मूला के आधार पर कहा गया कि अब जो इंटरेस्ट रेट आप फिक्स करेंगे उसको आप एक्सटर्नली बेंचमार्क करेंगे। और वो बेंचमार्क क्या होंगे कि भाई रेपो रेट क्या है। अब सीधे देखो, सीधे जोड़ दिया गया रेपो रेट से कि इन चारों में से किसी न किसी एक का रिफ्लेक्शन आपके इंटरेस्ट रेट में होना चाहिए। रेपो रेट क्या है? 91 डे वाले ट्रेजरी बिल्स का यील्ड कितना आता है, 182 दिन के मेच्योरिटी वाले जो ट्रेजरी बिल्स होते हैं उनपे कितना रेट ऑफ रिटर्न यानी यील्ड आता है, और कोई और बेंचमार्क जो फाइनेंशियल बेंचमार्किंग इंडिया लिमिटेड नाम की एक एजेंसी है वो जो फिक्स कर दे। घूम घुमा के ये क्या कहा जा रहा है? ये कहा जा रहा है कि हम इस वाले पार्ट को, इनके इस वाले पार्ट को, ये जो इंटरेस्ट रेट है इस वाले पार्ट को इनके हवाले न छोड़कर यहां से अटैच कर देते हैं, सीधे डायरेक्ट इनका कनेक्शन कर देते हैं। ठीक, गाड़ी जब टो करती है, एक गाड़ी जब दूसरे गाड़ी को टो करती है तो क्या होता है? आप मेरी बात को ध्यान से सुनिए। गाड़ी, एक गाड़ी, आगे की गाड़ी जब पीछे की गाड़ी को टो कर रही हो, मान लो जो खराब हो गया है गाड़ी, तो दोनों के बीच में अगर रस्सी बंधी हुई है जो कि फ्लेक्सिबल रस्सी है, तो बीच वाले को ब्रेक लगाना पड़ेगा ना, जो पीछे वाले को ब्रेक लगाना पड़ेगा ना। जब आगे वाला ब्रेक लगा रहा तो ऑटोमेटिक नहीं रुक जाएगा ना वो, क्योंकि बीच में रस्सी है। पुल तो हो जाएगा, समझो मेरी बात को, खींचते समय तो खींच जाएगा, लेकिन जब आगे वाला ब्रेक लगाएगा तो पीछे वाला रुकेगा नहीं, लड़ जाएगा। तो पीछे वाले गाड़ी में जो बैठा है उसको ब्रेक लगाना पड़ेगा। लेकिन इसी रस्सी को अगर लोहे के एक बीम से कनेक्ट कर दिया जाए तब क्या ऑटोमेटिकली पीछे वाली गाड़ी नहीं रुक जाएगी आगे वाले के ब्रेक लगाने से? समझ गए मेरी बात को? वही बीम यहां पर लगाया जा रहा है कि सीधे इन दोनों को अटैच ही कर दो, हार्ड वायर कर दो, इनको अटैच कर दो कि इसमें अब जो कोई भी चेंज हुआ तो इसमें अपने आप चेंज हो गया, खत्म बात। तो कहा यह गया, आरबीआई ने कहा ये कि भाई सुनो बैंक साहब, सब करके देख लिए, सब फेल हुआ जा रहा है, अब सुनो ऐसा करो कि अपना जो लेंडिंग रेट है वो पॉलिसी रेट से ही जोड़ दो, सीधे खत्म बात, जाओ, और कोई बातें नहीं करनी हमको। लेंडिंग रेट को सीधे पॉलिसी रेट से जोड़ दीजिए, या फिर उससे नहीं जोड़ना चाहते हैं तो जो बाकी हमारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ट्रेजरी बिल वाले, जो ट्रेजरी बिल फ्लोट होते हैं उस पर आदमी पैसा कमाता है, इन्वेस्ट करता है, तो उस वाले इन्वेस्टमेंट रेट का रिफ्लेक्शन कर दीजिए। दैट्स ऑल इट इज सेइंग। ठीक है, जस्ट गिव मी 1 minute माय डियर फ्रेंड्स।
ओके, सो दैट वाज अबाउट मॉनेटरी ट्रांसमिशन इंडिया में क्यों वीक है, क्या स्टेप्स लिए गए आरबीआई के द्वारा, सब जान गए। बहुत हल्के शब्दों में इसको समझ लेना है बस, ज्यादा नहीं, उसमें गूढ़ता में नहीं चले जाना है, बस कॉन्सेप्ट समझते जाइए। अब फट से 2 मिनट का लेक्चर और उसमें आप फटाफट ये समझ लीजिए कि मॉनेटरी पॉलिसी ने कैसे हेल्प किया कोविड-19 के समय में। हाउ डिड इट हेल्प? देखिए 5 या 6 मुख्य स्टेप्स आप हमेशा याद रखिएगा। कोई पूछे कि मॉनेटरी पॉलिसी का क्या रोल रहा कोविड-19 के मैनेजमेंट में, तो फटाफट बता दीजिएगा कि इन मेथड से किससे किससे। नंबर 1 CRR, नंबर 2 लॉन्ग टर्म रेपो, नंबर 3 MSF मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, नंबर 4 स्पेशल रिफाइनेंसिंग फैसिलिटी, नंबर 5 मोरेटोरियम, नंबर 6 मार्जिन। ये 6 स्टेप्स आप बता सकते हैं। और कैसे हेल्प किया है उसने? देखिए क्या किया। सबसे पहले आरबीआई ने 1% से CRR को रिड्यूस कर दिया। तो 1% से जब कैश रिजर्व रेशियो को रिड्यूस कर दिया, याद है ना सबको कि कैश रिजर्व रेशियो का मतलब ये हुआ कि ये सिंपल बैंक है, मान लीजिए कोई, आरबीआई है, आरबीआई जो जब CRR फिक्स कर देती है तो उसका मतलब क्या होता है कि बैंक को अपना कुछ पैसा इनके पास रखना पड़ता है। तो 1% कम कर दिया तो उतना पैसा रिलीज हो गया। उस 1% का इफेक्ट था वो ये था, देखो 1,37,000 करोड़। ओके, 1,37,000 करोड़ रुपया फ्री हो गया बैंक्स के लिए 1% कम करने से। तो समझ गए ना, यानी टोटल उनका डिपॉजिट का जो लिमिट डिपॉजिट होंगे वो कितने रहे होंगे? 1,37,000 और 2 जीरो और लगा दो। 1% अगर इतना हुआ तो 2 जीरो और जोड़ दोगे ना, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 1,37,00,000 करोड़, फिर से 1,37,00,000 लाख करोड़ रुपए का यानी टोटल है। समझे ये बात? तभी तो 1% छोड़ देने से जो है वो CRR कम कर देने से इतना पैसा चला गया। समझ गए होगे, इतना तो समझते ही हो, ठीक बात है, कोई बात। चलो, तो CRR कर दिया, लिक्विडिटी चली गई भाई CRR कम कर देने से। दूसरा काम क्या किया कि फ्रेश डिप्लॉयमेंट ऑफ फंड्स कर दिया। इन्वेस्टमेंट ग्रेड के जो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स होते हैं, क्या होते हैं कॉर्पोरेट बॉन्ड्स और कमर्शियल पेपर, ये हम आपको बताएंगे। कुल मिलाकर अभी ये समझ ले, और डिबेंचर्स, तीन फील्ड में कहा गया ये कि जो है 1 लाख करोड़ जैसा नया जो है वो लॉन्ग टर्म जो है वो करने के लिए 1 करोड़ जैसा रुपए, 1 लाख करोड़ रुपए के इफेक्ट वाला एक और स्टेप लिया गया, जिसमें फ्रेश कैपिटल जो है वो इनके रूप में जो है वो फ्लोट कर दी गई। ठीक है, इन्वेस्टमेंट ग्रेड कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हो गए, कमर्शियल पेपर हो गए, कि इसमें अगर लोग लगाएंगे तो जो है वो 1 लाख करोड़ रुपए और मार्केट में रिलीज हो जाएगा। व्हाट आर दे एग्जैक्टली, नेक्स्ट लेक्चर में हम जब इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ रहे होंगे तब आपको बता दूंगा डिटेल में। तीसरा, नेक्स्ट मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, आप सब लोग पहले से जानते हैं। तो 1% बढ़ा दिया, समझे? तो 1% बढ़ा दिया तो महंगा पड़ गया लोन ना। लिखो चैट बॉक्स में जल्दी। तो ये तो उल्टा हो गया, जितना CRR में फायदा किया था उतना तो MSF में नुकसान हो गया। क्या सही बोल रहे हैं हम? ये देखना, वो लिमिट बढ़ा दी गई, इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाया गया, वो लिमिट बढ़ा दी गई है। जो था ना कि 1% से ज्यादा पैसा नहीं आप बोरो कर सकते, वो लिमिट 1% से और बढ़ा दी गई। यानी 1% रहा होगा तो वो 2% हो गया, 2 रहा होगा तो 3% हो गया। समझ गए? और ऑब्वियसली इन सबका बेस तो वही है ना। इन सब का एक जो परसेंटेज कैलकुलेट किस पर होता है, उसी पे होता है ना। 1,37,000 करोड़ रुपए पर ही तो होता है। तो उतना ही पैसा और छूट गया। हम आपको बताए थे ना कि ओवर एंड अबव ये 1,37 तो गया ही मार्केट में, 1,37 और गया मार्केट में। अब याद आ गया लिक्विडिटी मैनेजमेंट फ्रेमवर्क जो हम पढ़े थे, याद आया कि पहला स्टेप तो ये है कि इससे पैसा मिल जाए, और दूसरा स्टेप ये है कि उसके ओवर एंड अबव इससे भी पैसा मिल जाए। ठीक, देखिए कहानी सामने दिख भी रही है। तो कॉन्सेप्ट और उसका एप्लीकेशन बिल्कुल सही बात है। CRR में रेट कम कर दिया गया उतना ही, तो उससे पैसा अंदर चला गया। यहाँ पे लिमिट बढ़ा दी गई तो उतना पैसा अंदर चला गया मार्केट, एकदम फर्स्ट क्लास। फिर स्पेशल रिफाइनेंस फैसिलिटी, यानी ये फैसिलिटी कोई रेगुलर नहीं रहती है, स्पेशल आई है, एक्सेप्शनल केस में आई है। और जो नाबार्ड, सिडबी और हाउसिंग बैंक है जो, इनके लिए 50,000 करोड़ रुपए स्पेशल दिए गए, इनको रिफाइनेंस किया गया कि आप उसमें प्रॉब्लम में चल रहे होंगे। ये जिस क्षेत्र के आप अपने आंख से देख ही रहे हैं, ठीक है, रूरल जो है होगा, ये सिडबी हो गया,
इंफ्रास्ट्रक्चर में हो गया, बिल्कुल गवर्नमेंट के प्लानिंग का पार्ट हो गया। तो इसलिए उस क्रेडिट को सपोर्ट करते हैं, उस तरह के उन एरियाज के स्पेसिफिक क्रेडिट को सपोर्ट करते हैं, तो उनको 50,000 करोड़ का और फायदा दिया गया कि वो उन फील्ड में जो है उनकी लिक्विडिटी जो है वो बढ़ जाए। फिर मॉरेटोरियम, ये तो सबको याद होगा, करंट अफेयर्स के तौर पर याद है किसी को कि 3 महीने का जो दे दिया गया था कि माफ कर देते हैं ईएमआई वगैरह, याद है? अगर किसी ने वर्किंग कैपिटल के लिए लोन लिया है तो उसके लिए ईएमआई के लिए मोराटोरियम वो वेव कर दिया गया था 90 डेज। यस एग्जैक्टली। और लास्ट पॉइंट क्या किया कि मार्जिन्स को रिड्यूस कर दिया। किस तरह की मार्जिन्स को? कि अगर आप वर्किंग कैपिटल के लिए यानी बिजनेस करने के लिए किसी इस पर्पस के लिए वर्किंग कैपिटल के लिए अगर लोन ले रहे हैं तो जो हम पहले 100 रुपए की सिक्योरिटी रखवा के 80 रुपए ही लोन देते थे, अभी 100 रुपए के बदले हम 95 दे देंगे या 90 दे देंगे। आप समझ गए मेरी बात? जो मार्जिन तो अच्छे से समझते होंगे आप कि मार्जिन रिक्वायरमेंट्स को कम कर दिया गया कि अगर आप भाई बिजनेस करने एंटरप्रेन्योर है और बिजनेस करने के लिए लोन ले रहे हैं तो वर्किंग कैपिटल के लिए दिए गए लोन्स में हम मार्जिन जो है वो कम कर देंगे। तो मार्जिन रिड्यूस कर देने से क्या हुआ कि मैक्सिमम अमाउंट जो जा सकता है वो बढ़ गया है कि जो डाउन, जिसे कहते हैं कि डाउन पेमेंट कम करना है अब हमको, इस तरह से समझ लो कि डाउन पेमेंट कम करना है तो बढ़िया भाई हमारा जाया तकसीस जो है वो फ्री हो गया। इसका ठीक उल्टा यह है कि बैंक के पास आपने जो सिक्योरिटी रखी है उसका ज्यादा से ज्यादा पोर्शन आपको मिल जाएगा अब लोन के रूप। ऑलराइट, ये बात समझ गए? आप कल पढ़ेंगे, फ्रेश माइंड से पढ़ेंगे फाइनेंशियल मार्केट और उसके जो इंटरमीडिएटरीज वगैरह हैं वो कल पढ़ा जाएगा, फ्रेश दिमाग से एकदम पढ़ेंगे। ठीक है, ऑल राइट, थैंक यू। चलो जय हिंद, सी यू सून। रिवाइज करते रहिए, भूलिए मत चीजों को। ऑल राइट, चलो गॉड ब्लेस यू।